the serene tranquility that the lofty mountains presented Cajon, no human intuition could barely even whisper that so many stories of intertwined lives, the mighty and the majestic mountains had kept buried in its lap. This time, while wandering in the paths of northern Bengal, Cajon was allured to explore the lives of the Tamangs. Literally, the word Tamang means Murmi. Here Mur means border and Mi means men. Thus Tamangs are referred as the people who live in the border areas. They were called Tamang for their profession of horse trading. Tamang Settle is a compact settlement and bear a strong sense of unity. Tamangs celebrate this collective identity even today. This is because of a troubled past, bearing a miserable memory of migration, separation, treachery, insult, for which they had to leave their ancestral land in Nepal and settle in parts of Darjeeling and Tarai parts of India. The flourishing tea industry was another reason which dragged them in these parts of Indian territory. But that was long, long ago. It is seen in the anxious brightness of life of a Tamang Settle that they are so proud of being alive even after so many struggles that they had to fight. Their hold on life is marvelous. Be it agriculture, livestock rearing, coping with the urban lifestyle, Tamangs are now a self-reliant, confident tribal community. Anyone can feel the warmth of their collective being when they are found to be associating with the musical instrument called the Damphu. The beat of Damphu is the magical element like Hamlin had, which drags out all Tamangs and sways them in a joyous confidence. ये है हमारा कल्चर तामांग कल्चर का एक डम्पू, अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हम लोग तामांग में बोलता है ये घेरो, अम्बुरला घेरो बोलता है। अम्बुर काइंड ऑफ ट्री, ये पहाड़ में मिलता है, उसी को काट के ये जो रिंग बनाता है इसका बोलता है अम्बुर। उसके बाद में अभी जो ये दिख रहा है इसका बोलता है राला डी,
हमारा तो तामांग लैंग्वेज में इसे रालाडी बोलता है, वो है बकरी का जो छाला, रालाडी बोलता है। उसके बाद में ये जो है ना, ये जो बांस का जो बनाया हुआ है जो पिन है, उसको बोलता है हमारा लैंग्वेज में पाठक सिंह। तो पाठक सिंह इसको यहाँ पे घुसा कर जो छाला है, बकरी का छाला और रालाडी, उसको मोड़ के हम लोग ये वाला डम्फू बनाता है। और क्रैक इसको मिला के हम लोग इसका ऐसा करके बाजा बजाता है। ये है हमारा कल्चर तामांग कल्चर का एक डम्फू इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और शुरू में जिसने बनाया है उसका नाम है पेम दोर्जे मेमेन। तो पेम दोर्जे मेमेन ने जो जंगल में गया था, उसने एक ऐसा किया तो मृग को मार दिया था। जब घर में आया तो वो दिखाया तो हमने मृग लेके आया, इसको मार दिया। तब उसका जो है वाइफ, वो बहुत गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। तब बात ही करना बंद कर दिया। वो जब साइड में जाता है तो वो अलग कर देता है। इसीलिए अब क्या करूं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गया। तो बाद में उसने खुश करने के लिए, उसको वाइफ को खुश करने के लिए उसने एक तो बाजा बना दिया। वही ये जो पेड़ को काट के एक तो बाजा बना दिया। उसके बाद में बाजा बजा के एक गाना, जब वो lasso danna manna la lasso ammaile ya thori ding ba chu dom phu ya thori ding ba chu dom phu kalchega seng ba bilawa kalchega seng ba bilawa nainu seng ba aina ba nainu seng ba aina ba onomo dangbo duyuri onomo dangbo duyuri prem dorje me se seng bala prem dorje me se seng bala o jana dombo yang se dingma lasso। ये इंस्ट्रूमेंट आगे मैंने बोल दिया था, वो जो डम्फू बनाया हुआ था वो पेम दोर्जे मेमे ने उसको वाइफ को, बेबी को खुश करने के लिए ऐसा है उसने डम्फू भी बनाया। उसके साथ साथ में बैम्बू का जो इंस्ट्रूमेंट, ये पाठक धुई पे उसी टाइम में बनाया हुआ है वो खुश करने के लिए। अभी ये बैम्बू मेड इंस्ट्रूमेंट और ये डम्फू हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक हो के हमारा कल्चर में अभी तक है। और जो भी कल्चरल प्रोग्राम होगा उसमें डम्फू के साथ साथ में ये पाठक धुई बैम्बू मेड इंस्ट्रूमेंट भी साथ में वो बजाएंगे। Laptemi thula makola, laptemi thula makola. गरिबाबालाई जाकोला, गरिबाबालाई जाकोला। राला कि मिनमी थाङसारी, राला कि मिनमी थाङसारी। ngake ba sabung namasari, ngake ba sabung namasari. Dande ka syuba gumba namsari, syuba gumba namsari. Lapatemi koro koro makola, lapatemi koro koro makola। यहाँ पे तामांग लोग का जो मंदिर का डिज़ाइन कर रहा है, जो अभी स्टार्टिंग में जो डिज़ाइन दे रहा है, अभी बाद में ये होगा मंदिर, कंप्लीट मंदिर होगा। ये जो लकड़ी है वो है धूप का, धूपी का जो लकड़ी में बनाता है।
और एक घर में रखता है जो कंप्लीट होता है। उसके बाद में वो हिंदुइज्म में जो मंदिर बोलता है हम लोग वो तामांग में लासेम बोलता है, और तिब्बतन में वो छेसा में, जहाँ पे हम पूजा करने के लिए घर के भीतर रखता है। वहाँ पे 3 ठो भगवान, एक बुद्ध, एक गुरु रिम्पोछे और दूसरा है हमारा चेरेस जी, और 3 ठो भगवान का हम तामांग लोग पूजा करता है। और बुद्ध वो ज्ञान के लिए, और गुरु रिम्पोछे वो शांति प्रदान करने के लिए, और चेरेस जी वो है हमारा सृष्टिकर्ता, उसका हम लोग पूजा करता है। Religion of the Tamangs had undergone religious transformation from the inception of Buddhism in Tibet, or particularly with the foundation of Lama Buddhism or Lamaism by Guru Padmasambhava. Tamang religion is essentially comprised of 2 distinct yet coexisting systems, Buddhism and Bonism or Shamanism. Bon was originally a cult of nature worship. Tamangs worshipped the forces of nature as gods. The helpful ones were worshipped and the harmful ones were appeased. While collecting the crystals of Tamang history and life, Kahun was enthralled to experience their social customs and practicing their religious rituals. This was the Khepasang Puja as mentioned by them. अच्छा, आप लोग अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे पूजा का सामान बना चुका है। जो पूजा का सामान आगे देख रहे हैं वो 3 ठो जो चावल का बना हुआ है, इसको हम लोग बोलता है तामांग लैंग्वेज में तोरमा बोलता है। उसके बाद में जो आगे का है उसका तामांग लैंग्वेज में लांगसिंग बोलता है, जो चावल के बनाने के लिए वो होता है लकड़ी का बनाया हुआ आता है। अभी तो लकड़ी का यहाँ पे नहीं है, वो चावल से ही बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आगे दिख रहा है 2 ठो, उसका वो हम लोग बोलता है पोंग बोलता है। उसमें जो है हमारा तामांग कल्चर का जो है वाइन है, स्पेशल तरीका से वो बनाया हुआ है। और जो यहाँ का पुजारी है हम लोग उसको बोलता है, हमारा लैंग्वेज में बोनबो बोलता है। जो बोनबो को सपोर्ट करता है वो सपोर्टर है, उसको बोलता है हम लोग घानबा बोलता है, घानबा और तांबा भी बोलता है। वो दोनों मिलके ये जो पूजा करता है, हम लोग जो पूजा करता है वो पूजा का जो एक तामांग लैंग्वेज में वो है हमारा खेपासुंग बोलता है। खेपासुंग दैट मीन्स वी आर द क्या है वो प्रकृति का पूजा करता है। वो यही पे सामान है वो सब चढ़ाने के लिए। अभी धूप जल रहा है, वो सुगंधित धूप भगवान को खुश पाने के लिए जो हम लोग भगवान को ये बोलता है कि हम लोग को रक्षा करना चाहिए, ये जगह के रक्षा करना चाहिए। जो यहाँ पे नेचुरल कालामिटी हो गया तो ऐसा कुछ हो गया तो भगवान के लिए हम लोग आशीष, घर के आशीष के लिए, उस जगह के आशीष के लिए हम लोग पूजा करता है। ये पूजा एक्चुअली 3 जगह में हो सकता है। अभी जंगल में भी करता है और कोई लोग जंगल में करता है, कोई तामांग लोग कोई घर के जो दरवाजे के सामने भी करता है, और कोई घर के अंदर एक जो पूजा के जगह बना के वहाँ भी पूजा कर सकता है। 3 जगह में पूजा कर सकता है। बुद्धिज्म आने के आगे ये पूजा था, बोनबो का पूजा करता था। बोनबो लोग पूजा करता था, वो प्रकृति का पूजा करता था। जो संसार सृष्टि हो गया तब आदमी को म्राप्सङदामो घुर्चन्दामो अजिडोलमा म्राप्ला धदर सुसी छिन्जम जुजिम हर्ला ठेङ्गन जुजिम मैला ठेङ्गन जुजिम हर्ला ठेङ्गन जुसी मैला ठेङ्गन जुसी शिवन्टिम चु मोनेमलासे फुलथान्जी नौ गङ्गला बुम्बला छिसेनु शिलथानमन मला आखे मेमे माम कुजुगु आखे मेमेकु माम कुदा तिनी धोग्नु कुरो चु मैबमलम लावन मला खेबा बसारला दोन्दी तिनी सदा सगुन। The grand dramatic Bakpa dance was perceived through the lens of Kahun as a residue of the cultural negotiation between the 2 coexisting systems present in the Tamang religion, which is the pre-Buddhist tantric or shamanistic practice of religion,
which is a belief system and practice developing out of individual struggles of life, and the form of Buddhism spread by Guru Padmasambhava, which is a collected effort, strict doctrines of institution and disciplines enforced by a power structure. गुरु रिम्पोछे जब इविल स्पिरिट को हटाने के लिए वो आ गया था, तो सबसे पहले उसने उसको मनाने के लिए कोशिश किया। तब वो मनाने के लिए कोशिश करने से वो मान नहीं पाया, इसीलिए उसको गुस्सा हो गया। तो तब उसका जो रूप है, रूप बदल गया, उसका रंग है बदल गया। उसके बाद में एक डाकपो जो लाल रंग का हो गया, वो लाल रंग का होने से और गुस्सा आ गया। गुस्सा आने से मानी ये वर्ण के हो गया। अभी वो जो देखा रहा था वो डाकपो मानी सिंगदुंग का वो जो यहाँ पे छाम हो गया। छाम ये है हमारा तामाङ लैंग्वेज में छाम, इसको हिंदी में इंग्लिश में डांस बोलता है। वो डांस करके पूरा इसको हटा दिया था। जब तामाङ लोग लड़ाई में जाता था, उससे आगे भी ये गुरु रिम्पोछे का जो पूजा, जो भगवान के पूजा के लिए वो छाम वो डांस करता था। उसे क्या मिलता था? तो पावर मिलता था तामाङ कम्युनिटी को। उसके बाद वो वार में सक्सेस हो गया। Tamang folklores revolve around the life of their ancestors in Tibet and Nepal. We were mesmerized to learn about the conviction with which they have mothered those memories even today. It is also a long way to go to explore more about those enriching stories.